Parallelly, you can check your syllabus as well, correct? So all the things should be as per syllabus only. Okay. एक दो टॉपिक इधर उधर हो तो don't worry. If you have some additional things, important thing related to plant maintenance only, you can tell me. Okay. But I know the syllabus. I will teach you like that. So don't worry about it much. Okay. So my screen is visible, both of you. Yes, sir. So SAP plant maintenance module we are learning. Master data BOM. So full form of BOM is like bill of material. Okay. So after reading this name bill of material, what is thought in your mind? Both of you. Bill of material. What is that? Means ये क्या हो सकता है? क्या लग रहा है आपको? This is a master data. And I know you guys don't know about it, but ये नाम पढ़ने से क्या लग रहा है? Simple question. So Basically, the bills all of the material. materials which we One by one. What happened? ठीक है हाँ so बोलिए. basically, sir, what I understand that bill of material is the bills which we bills of the materials which we acquire, which we are buying. Okay, fine. It's thought of Ashu or Arindam. Uh, Yes, sir. Vasu, sorry Vasu. Arindam, Arindam. Arindam. Okay. What about you Vasu? आपको क्या लग रहा है? So say all Same लग रहा है? materials. Hmm. So you, sorry to say you both of guys are incorrect. So ये नाम से नहीं जाना है. Hmm. इवन दो एसीपी में इसको बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं, तब वो बोलने की बात है, एसीपी लैंग्वेज है, बट दिस इज नॉट लाइक दैट. इसलिए मैं पूछता हूँ क्योंकि जनरली लोग ध्यान नहीं देते. मैं जो पढ़ाता हूँ और जब वो नाम पढ़ते खाली बिल ऑफ मटेरियल, तो इंटरव्यू में कुछ गलत बोल के आते हैं. करेक्ट है? So don't worry about it. Yes, We'll sir. learn what is that. So going to next slide. BOM, it's nothing but a bill of material. In the SAPM is a structured list of all spare parts, we can say components, and we can say material required to maintain or repair an equipment or function location. The meaning of this line, bill of material, is nothing but a list of spare part which required to perform the maintenance activity. It is just a list of spare part. It is not just a cost and anything. BOM is just a list of spare part of particular machine on which maintenance has to be performed. Correct? So clear? Okay, So sir. what is a bill of material in one line only? So it tells what materials are needed for maintenance, because we have the spare part list. So among that material, whichever material is required, that we easily find out. So it tells what materials require for maintenance. It helps in planning and executing maintenance order. So maintenance order is a transactional data. के बाद जब whenever we complete the maintenance data, when then we move toward the transactional data, that time we use that spare part list in the maintenance order. So with the help of that, we done planning and execution of maintenance order. Also, if we have the list of spare part for particular equipment machine, we ensure right parts are available at the right time. Because see, एक मशीन है, सपोज डीजी पे मेंटेनेंस करना है, तो डीजी का मेंटेनेंस में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है सपोज, तो उसमें गैसकेट है, उसमें सील है, उसमें ऑयल है, जो सब कुछ अपने पास स्पेयर पार्ट अवेलेबल है. मतलब उसको जो स्पेयर लग रहा है मेंटेनेंस करने के लिए, कुछ चेंज करना हो तो वो मटेरियल है. तो राइट पार्ट अवेलेबल है द राइट टाइम, सो डाउन टाइम भी कम होगा और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी जल्दी हो जाएगा. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ मटेरियल. करेक्ट है? तो इंटरव्यू में पूछा कि बिल ऑफ मटेरियल क्यों यूज करते हैं, तो दीज आर द एडवांटेज. Simple, right time, right material should be available. It helps to planning and executing the maintenance order. And materials, it tells what means what spare part needed for performing the particular maintenance. तो फिर नया कोई इंजीनियर भी आ गया सपोज मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस मैनेजर नया है, उसको मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है जैसे पुराने वाले को रहता है, तो ही कैन सी द बिल ऑफ मटेरियल. सो इजीली वी कैन फाइंड आउट, हाँ भाई ये स्पेयर पार्ट इसको लग रहा है, ये है, मतलब साइज के डायमेंशंस के लग रहे हैं, तो इजीली लिस्ट अवेलेबल रहे तो उसको ढूंढने में टाइम बचेगा. ओके, सो इट्स एफिशिएंसी विल बी गेटिंग. सो दिस इज नथिंग बट अ BOM. करेक्ट है? नाउ
टाइप्स ऑफ बीओएम इन एसएपी। तो एसएपी में इसके कितने टाइप्स है? सो 3 टाइप्स ऑफ बीओएम इन एसएपी। तो अपने मतलब के 2 टाइप है 3 में से। फर्स्ट इज अ मटेरियल बीओएम विच इज मेंटेन बाय मटेरियल मैनेजमेंट टीम। तो अपन इतना नहीं देखते इसको मटेरियल बीओएम को, दिस इज मास्टर डेटा ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, बट जस्ट अवेयरनेस अपने को चाहिए, नहीं तो फिर इंटरनेट पूछ रहा है कि देखो 3 टाइप्स ऑफ बीओएम रहते हैं, जैसे मटेरियल बीओएम, इक्विपमेंट बीओएम, फंक्शन लोकेशन बीओएम। So interviewer ask you how many types of BM. So you just tell them equipment and function location. And again he cross question you कि और कुछ नहीं रहता है क्या? So you can say that material BM but is maintained by the MM team. तो ये knowledge रहना चाहिए, इसलिए मैं इधर ऐड किया है। करेक्ट है? अपना ये दो मतलब का। Now equipment BOM. So equipment BOM क्या रहेगा? So it linked to specific equipment. So स्पेसिफिक इक्विपमेंट पे लिंक रहेगा, मीन्स एक इक्विपमेंट का सेपरेट बीएम रहेगा। करेक्ट है? सो क्यों रहेगा सेपरेट बीएम? क्योंकि वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट पे क्या क्या स्पेयर पार्ट लगने वाले हैं उनका लिस्ट होगा वो। सो इन ऑर्डर टू मेक द बीओएम इन एसएपी वी हैव टू यूज द ई कोड IB01 फॉर इक्विपमेंट बीओएम। करेक्ट है? ध्यान रखने के लिए आई प्लांट मेंटेनेंस, बी से बीओएम और 01 ध्यान रखना। करेक्ट है? Okay, sir. ओके, okay, Vinith, I'm audible to you? 01. Hello, Vinith, I'm audible? Audible, sir. Audible, sir. Okay, fine. We just started a topic BM. Okay. Yes, Arindam, you are asking anything? The 01 is to search data. No, not to search. IB01 is the whole T code to create a equipment BM. IB02 is a whole T code to create to change the equipment BM, and 03 to display the equipment BM. Correct? Okay. Okay. This is a whole T code only. So for equipment BM, IB01 T code is to create. yes, to create. See, keep in mind, create, change, display 01, 02, 03. Okay. Everywhere these things will get followed in SAP. So now to create a function location, so function location का BM रहेगा. So for that we use IB11, IB12, IB13. Now interviewer, we want to make these two BM, but we don't want to make this material BM. But interview prospective interview just ask you the T code only. So you can remember the T code CH01. It is not related to us, but still if anyone interview they ask, so you should have to prepare like that. Okay. तो जस्ट ये ध्यान में रख लो, मटेरियल बीएम का टी कोड CH01 रहता है। ये तो दो अपने इंपॉर्टेंट है। मूविंग टुवर्ड्स, okay, why it is important? So with the help of bill of material is nothing but a list of spare part used for perform the maintenance or particular machine. So if the spare part list are available, so maintenance getting faster. Also breakdown time is reduced. Also avoid the manual interruption to selection of material from store, and improve as well as it will improve the inventory control in the MM model. So we have to take one example. So say for example one pump is there. So BM may include inside the pump. Pump is the equipment. So what are the list of spare part? It's nothing but what is a BOM. So in that bearings, seals, gasket, oil, etc. There are list will be given. So bearing rating will be given, particular seal rating will be given, gasket rating will be given, oil quantity will be given, all the things will be given in the spare part list, nothing but a BOM. Correct? Now we should have to make the BOM. Then to create a BOM, use the T code IB01. Okay, fine. So just moving to the system now.
ठीक है फाइन. So what is T code to create equipment BUM? IV01. 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 So we have to make the BUM on particular equipment. So we should have to provide the equipment as the input. Correct है? Equipment number provide करना पड़ेगा. If you have the equipment number, so you can provide. If you don't have equipment number, so you can search from the list. So आपके लिस्ट में जो equipment होगा उससे देख लो. करेक्ट है. ना देखो मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट है. डीसी मोटर है, इंडक्शन मोटर है. सो वी जस्ट हैव टू. तो आपने क्या करना है, आपके सर्वर में प्रॉपरली पहले फंक्शन लोकेशन बनाना है. देन यू शुड हैव टू मेक द इक्विपमेंट असाइन टू पर्टिकुलर फंक्शन लोकेशन एंड देन यूज द सेम इक्विपमेंट टू क्रिएट द बीओएम. सो बीओएम विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर. देन करेक्ट है. तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बना पाओगे और स्ट्रक्चर बना के फिर स्क्रीनशॉट सेंड करना है प्रैक्टिस का. करेक्ट है. नाउ वी आर आई एम टेकिंग द डीसी मोटर 2581. जस्ट टेक अ नेम. Correct है. Equipment number we have taken. Use our plant. What is our plant? 1010 we are using. Correct है. So again they are asking for BUM usage. So what should be the BUM usage? It should be the standard. So which we should have to select. Can anybody tell me after seeing this? बताओ इसमें से क्या लेना बेहतर रहेगा. गलत होगा तो I will tell you. Number 2, sir. So plant maintenance. Why number 2? Sir, plant maintenance will be relevant. No? Correct. Plant maintenance will be relevant. Why plant maintenance will be relevant? Because BUM बहुत सारे मॉड्यूल से क्रिएट किया. जैसे प्रोडक्शन मॉड्यूल क्रिएट करता है, यूनिवर्सल बीएम भी बनता है, कॉस्टिंग वाला क्रिएट करता है. तो हर एक मॉड्यूल के लिए बनता है. तो अपने मॉड्यूल के हिसाब से चीजें ढूंढने का. देखो प्लान मेंटेनेंस और ऊपर भी जब पीएम है उधर ही प्लस है, बाकी जगह सब जगह माइनस और डॉट है. अभी प्रोडक्शन का है तो इधर प्रोडक्शन है, तो इधर जिधर प्रोडक्शन है उधर प्लस है, बाकी जगह माइनस रहा. तो इसको देखते हैं, डरने का नहीं. दिस इज नॉट अ बिग थिंग. प्लस माइनस ये खाली प्लान मेंटेनेंस सिलेक्ट करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. करेक्ट है. तो ये प्लस माइनस क्या है तो फिर कंफ्यूज होता है स्टूडेंट. सो देयर इज नथिंग. जस्ट सिलेक्ट द प्लान मेंटेनेंस. And if interviewer asks you what is a BM usage, so just remember for plant maintenance, it's a BM usage while creating the BM as a master data in plant maintenance. Correct है? कुछ डाउट इसमें? No, sir. Okay, just click enter from your keyboard. So it will show BOM already exists for this equipment. So ये equipment का already बन चुका है, तो different equipment लेंगे फिर. अच्छा देखते हैं किस किस का BOM बना है, किस किस का नहीं. फिर इंडक्शन मोटर ले लेते हैं 2567. इसका भी बना है. प्लांट अलग रहता था. अच्छा लास्ट इसमें इक्विपमेंट बनाया था ना अपन, वही यूज करेंगे. इंडक्शन मोटर बनाया था 2588 तो उठा लेते हैं. ये इधर क्यों आ रहा है समझ गए ना, क्योंकि वो इक्विपमेंट के लिए Yes, sir. ऑलरेडी बीएम बन चुका है, इसलिए एरर आ रहा है. देयर इज नो इशू. देखो इस इधर इक्विपमेंट डालते ही नया स्क्रीन ओपन हो गया. सो देयर इज नो एरर. सो क्रिएट इक्विपमेंट बीएम पूछ रहा है. करेक्ट. ये आइटम्स 0010 0020 नथिंग बट अ सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 like that. Then it's a item category. So what should be the item category for spare part which are available in store? बताओ क्या आइटम कैटेगरी रहना चाहिए जो स्पेयर पार्ट स्टोर में अवेलेबल है. अच्छा ठीक है, आपका नहीं हुआ, आप नहीं बता पाओगे. सो ऑलवेज रिमेंबर, क्लिक ऑन इट. Item category L for stock item. Stock item is nothing but those item available inside the store. And N, it's a non-stock item. Those item who is not available with us. Means item code are created but stock is not available. So for plant maintenance, two item categories are important. L for stock item and N for non-stock item. And I for PM structure also used, but it is rarely used. There is no one asking you, don't worry about it. Just interviewer ask you what are the item category for stock item and what are the item category for non-stock item.
and same will be used in the BOM, task list, and maintenance orders, and other categories are related to other model. Correct है? So which category I should have to select now? क्या select करना पड़ेगा? L select करना पड़ेगा, right? Sir, Because L. stock item का देख रहे हैं, तो L select करना है. Then after they are asking to select the component. Components is nothing but a material select करना है. तो ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट है, जैसे इंडक्शन मोटर है, उसके लिए क्या क्या स्पेयर पार्ट लगेंगे वो सिलेक्ट करना है. अभी क्या है, दिस इज अ टेस्ट सर्वर, तो इसमें प्रॉपर स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं होंगे, पर अपना रियल टाइम में प्रॉपर स्पेयर पार्ट अवेलेबल रहता है. करेक्ट है, धीरे धीरे प्लान कोड बनता जाता है. तो अभी के लिए जो मटेरियल अवेलेबल है, एनी मटेरियल का लिस्ट अपन सिलेक्ट कर लेंगे. इट शुड बी रिलेवेंट टू दिस और इट शुड नॉट बी रिलेवेंट टू दिस. करेक्ट है. तो ये कंपलसरी नहीं कि इंडक्शन मोटर का मिलेगा, जो मिलेगा वो जस्ट मटेरियल का लिस्ट ले लेते हैं, बट इन रियल टाइम इट शुड बी रिलेवेंट टू दिस ओनली. और वो एज अ कंसल्टेंट आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एंड यूजर आपको देगा वो लिस्ट. करेक्ट है. So you just have to put the equipment, copy paste that list, put the quantity and just save it. Your work is over. करेक्ट है. तो अभी आपने को मटेरियल लिस्ट प्लांट वाइज ढूंढनी है, तो पुट द प्लांट एंड सर्च इट. तो ये प्लांट में दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल इज मेंटेन बाय एमएम टीम. इतना मटेरियल अवेलेबल है, ये मटेरियल कोड है, इसमें भी लैंग्वेज, इसमें भी मटेरियल डिस्क्रिप्शन, एंड इट इज अ प्लांट. देखो 1010 में इतना अवेलेबल है. तो देखो कुछ रिलेवेंट मिलता है तो ले लेंगे, अदरवाइज कुछ भी उठा लेंगे. सो इंडक्शन मोटर के लिए रिलेवेंट क्या मिलता है, देखो कैरियर है, बैक्स है, क्लचेस दे मैक, इंजन, हाइड्रोलिक. कुछ दिखा तो बताते जो मोटर के लिए. बट स्क्रू ले लेते हैं, चलो ये पर्टिकुलर स्क्रू लगते हैं मोटर का, वो ढक्कन खोलने के लिए, ऐसा कुछ रहेगा तो ठीक है. ठीक है. तो ऐसा कंपोनेंट में मटेरियल we should have to put and press enter. So different screen will be open. In this screen no need to fill anything, just fill the quantity. ठीक है, अपने को 2 स्क्रू लगने वाले भाई, तो ले लिया एंड जस्ट प्रेस एंटर. तो इधर 2 क्वांटिटी आ गया और उसका यूनिट आ गया पीसेस में, और ऑटोमेटिकली वो सिस्टम पीसी में ले लेता है उसका इक्विपमेंट मास्टर डेटा से. करेक्ट है. नाउ सिलेक्ट वन मोर मटेरियल, सेम यल कैटेगरी स्टॉक मटेरियल बाय प्लांट, एंड यू कैन सर्च फ्रॉम here also. नट ले लेते, फिर बोल्ट मिल गया तो नट मिल जाएगा. अच्छा ठीक है, नट मिल गया, चलो ठीक है, नट उठा लेते. डबल क्लिक ऑन इट. क्वांटिटी इधर भी डाल सकते हैं, देखो 2 डाल दिया तो वो स्क्रीन ओपन नहीं होगा. करेक्ट है. और एक मटेरियल ले लेते हैं. मोटर रिलेटेड कुछ मिलता है क्या, बियरिंग मिलता है. Sir, all these necessary parts are already fed in the system, no? Yes, parts are already maintained in the system, and the in order to maintain the plan, it's a work of MM team. फर्स्ट क्या होता है, देखो बिजनेस प्रोसेस समझो. इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले एक मटेरियल का कोड बनता है XYZ, जैसे है 1955 है, जैसे MM पीपल फर्स्ट मेक अ कोड. वो कोड बनने का भी प्रोसीजर बढ़ा रहता है, फिर वो कोड अप्रूव होता है. जब पर्टिकुलर मटेरियल पे उसका डायमेंशन पे सब प्रॉपर कोड बनने के बाद वो मर्चेस उस कोड के अगेंस्ट मटेरियल परचेस होता है. देन परचेस होने के बाद वो स्टोर्स में आता है, देन उसका स्टॉक्स होता है. करेक्ट है. सो दिस MM मॉड्यूल इसके लिए तो है. Correct. So they will maintain. We don't have to take any. We don't have to worry about it. Just select what are the material required. जो नहीं है तो उनको बोलो भाई हमको मटेरियल चाहिए, स्पेसिफिकेशन दे दो, कोड बनने का लिस्ट दे दो, दे विल मेक एंड बी अवेलेबल. करेक्ट है. बिकॉज इट्स ऑल ऑफ अबाउट इंटीग्रेशन. करेक्ट. ठीक है. तो ये कितना चाहिए, ये की चाहिए, चलो ठीक है. सो बॉल बेरिंग एक ले लिया, ठीक है, इतना चीजें ले लिया. नाउ शॉर्ट रिंग, आपको कुछ और भरना हो तो यू कैन मेक एनी नोट्स ओवर हियर. तो ये कुछ दे सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी. इतना जरूरत नहीं है इसमें, बस इतना ही जरूरत है. आइटम, कैटेगरी, कंपोनेंट, इट्स डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट. करेक्ट है.
ये वैलिडिटी ऑटोमेटिकली वो मास्टर डेटा से उठा रहा है मटेरियल का. दिस इज नॉट रिलेटेड टू अस. नाउ जस्ट सेव इट. सो देखो मटेरियल डॉक्यूमेंट है तो उसमें भी कुछ नहीं करना है. देखो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गया. जनरल में कुछ भी नहीं करना है. जस्ट मटेरियल इतना ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए. एंड जस्ट सेव इट. इट विल से BM क्रिएटेड फॉर द इक्विपमेंट 2588. करेक्ट है. सो नाउ उसको देखना है अपने को स्ट्रक्चर में कैसा दिख रहा है, क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ. सो गो देयर. इधर जाना है, रिफ्रेश करना है. सो आ रहा है क्या? इसके नीचे आना चाहिए. तो नहीं आ रहा है तो बैक जाओ. इधर BM पे तो टिक है अपना, आना तो चाहिए. इक्विपमेंट हायरार्की BM इसका 6 कर दो. एंड देन फिर भी नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? 1 2 7 हायरार्की. चलो 8 कर. 01. No plan at all for 2 groups. इधर आना चाहिए. क्यों ले रहा है सिस्टम? जस्ट आई विल चेक देन. ठीक है, एक डिफरेंट प्लान देखते हैं. देखो आ गया. यस और नो? Yes, sir. ऑडिबल. तो इंडक्शन मोटर का ये लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट है. दिस इज नथिंग बट अ BOM. तो रेड कलर में आ जाता है जो BOM है. करेक्ट है. सेम BOM वी कैन मेक फॉर फंक्शन लोकेशन एज वेल. कभी कभी देखो ये इंडक्शन मोटर का भी सब स्पेयर पार्ट है. तो अभी ऐसा भी रह सकता है, कंप्रेसर का भी स्पेयर पार्ट रह सकता है. बिकॉज दिस इज अ फंक्शन लोकेशन. तो ऐसा नहीं है, उसका भी अपन स्पेयर पार्ट मेंटेन कर सकते हैं. सो नाउ वी आर मेंटेनिंग स्पेयर पार्ट फॉर दिस फंक्शन लोकेशन लाइक अ compressor. Okay. So in order to create a BM of this compressor, what should be the T code? IB11. IB01. Not 01. 01, see, 01 is for equipment, correct? Okay, okay. And function location IB11. Remember that interviewer IB11. may ask because Okay, it okay. is not the same. So put IB11 and just click enter. So they are asking like a function location to enter as an input. Sir. Yes. Hello. बोलिए बोलिए. स्क्रीन सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा था. स्क्रीन शो नहीं हो रहा है. अभी आ गया. ठीक. सबको दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है सर. अभी Yes, sir. हाँ सर. सबको दिख रहा है ना? ठीक है, फाइन. सो दे आर आस्किंग टू एंटर द फंक्शन लोकेशन. IB11 टी कोड डाला, तो IB01 डाला तो इक्विपमेंट एंटर करने को पूछेगा. तो सिंपल है, उधर से अपन समझ जाएंगे रियल टाइम में. सो देयर इज नो इशू. सो फंक्शन लोकेशन जैसे कॉपी कर लो, क्योंकि कंप्रेसर के लिए अपने को बनाना है. जस्ट कॉपी इट. होल लोकेशन वी श्योर टू कॉपी.
नाउ सेम प्लांट आएगा 1010, यूजेस भी सेम ही आएंगे, देर इज नो चेंज, जस्ट क्लिक एंटर, सेम ही चीज आएगा। कैटेगरी लोगे, स्टॉक आइटम, कंपोनेंट्स लोगे, तो देखो कंप्रेसर के लिए क्या क्या रहेगा कंपोनेंट, प्लांट डाल के सर्च करो क्या क्या रहता है कंप्रेसर में, इधर जो रिलेवेंट हो तो लेंगे एक दो। फैन रहता है कंप्रेसर में, फैन भी ले लेते हैं, फैन नहीं है, मोटर भी नहीं है। इट्स डिपेंड अपॉन प्लांट, आपके प्लांट में भी रिलेवेंट किसी ने प्रैक्टिस करते हुए बनाया होगा एमएम वाले, तो मिल भी जाएगा, करेक्ट है। अदर्स प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, पर रियल टाइम में परफेक्ट डेटा लेता है। चलो देखो एक फ्रेम ले लो कुछ, तो द क्वांटिटी लाइक 1 एंटर, सेम ही चीज है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, सेम चीजें करनी है, बट दिस इज अ मास्टर डेटा एंड वी शुड हैव टू मेंटेन इट इन अ सिस्टम। तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑर्डर जब अपन ऑटो में जनरेट करेंगे, जैसे हर मंथ में ऑटोमेटिक ऑर्डर जनरेट होना चाहिए, तो हर मंथ में ऑटोमेटिक बीओएमबी जनरेट, उसको ऑर्डर में नो नीड टू पुट द मटेरियल, देन वो लिंकेज रहेगा तो वो भी जनरेट हो जाएगा, ऑपरेशंस भी ऑटोमेटिकली आएंगे। सो ये पहले मास्टर डेटा इसके लिए सीख रहे हैं अपन, जो ऑटो में सीखना है इसके लिए। नट बोल्ट ले लेते हैं, अच्छा 2 मटेरियल लेते हैं। So like that we should have to create and just save it. और देखो BM created per function location, just go over here and refresh, so you can see the BM of this particular function location as well, correct है। इसमें और एक चीज रहती है, और एक BM देखेंगे, go back, इक्विपमेंट का BM अपन क्या डिस्प्ले मोड में ओपन करेंगे, सो IB02 टी कोड डालो, एंटर करो, तो यही इक्विपमेंट आएगा, जस्ट एंटर करो उसको, and if select that particular equipment, correct है, and double click on it now। अच्छा ये तो मटेरियल हो गया, क्वांटिटी पे डबल क्लिक करना है, करेक्ट, एंड गो टू द स्टेशन। एक और चीज मेरे को बतानी है, ऑलरेडी भी कंप्लीट, देखो क्या करना है, क्वांटिटी पे डबल क्लिक करोगे, कौन सा भी मटेरियल अपने को एज असेंबली बनाना रहा तो, मीन्स असेंबली मतलब क्या, हैव यू नो व्हाट इज मीन बाय असेंबली। फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबली मतलब देखो एक असेंबली रहता है, उसमें 2-3 मटेरियल लगे हुए रहते हैं, कलेक्टिव, करेक्ट है। मतलब सपोज गियर बॉक्स हो गया, नहीं तो नट बोल्ट का असेंबली रहता है, तो कभी कभी स्टोर्स में एज असेंबली मटेरियल मेंटेन रहता है, ऐसे सेपरेट सेपरेट नहीं रहता है। देन किसी किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को मेंटेनेंस करने के लिए टोटल असेंबली लग जाती है, तो अपन एक असेंबली ही मेंटेन करते हैं स्टोर में, तो उसको फिर एसीबी को कैसे बताएंगे भाई असेंबली है कि नहीं है। सो फॉर दैट देखो एक से फॉर एग्जांपल ये बॉल बेरिंग को अपन असेंबली बनाते हैं, ऐसे समझ लो सपोज, तो डबल क्लिक ऑन इट्स क्वांटिटी, गो टू स्टेटस एंड लॉन्ग टेक्स्ट, और नीचे जाना है और पीएम असेंबली पे टिक करके सेव कर देना है, बस इतना ही काम करना है, तो सिस्टम को पता चल जाएगा प्लांट मेंटेनेंस वाली असेंबली है। बाकी ये स्पेयर पार्ट इंडिकेटर बल्क पोजीशन ये अपने रिलेटेड नहीं है, करेक्ट है। जस्ट गो देयर एंड सेव इट, अगेन ओपन इट। नाउ इधर बेरिंग का है ना असेंबली किधर टिक रहता है, ये मेरे सिस्टम में दिखाता नहीं, आपके सिस्टम में मे भी इधर देखो असेंबली है, जैसे असेंबली अपन ने बोला उसको, तो इधर एक टिक ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, एंड सेम इट विल बी रिफ्लेक्ट ओवर हियर आल्सो। ये देखो ये सब रेड कलर में है अभी VMs, सो जिसको असेंबली बनाया है वो Yes, sir. येलो कलर में हो गया, दिख रहा है, Yes, करेक्ट है sir. ना, जिसको असेंबली बनाया वो येलो कलर में हो गया। सो इसको देखो इस पे जी ड्रैग सर, करने से बताएगा पीएम असेंबली है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये भी मटेरियल है, ये भी मटेरियल है, बट दिस इज अ डिफरेंट, दिस इज असेंबली। तो उधर सपोज असेंबली इस एप्लीकेशन में मेंटेन किया रहेगा तो यू कैन यूज दिस फंक्शनलिटी, जस्ट इतना ही बताना चाहता हूँ, करेक्ट है। तो आपको अवेयरनेस रहना चाहिए एज अ कंसल्टेंट इसका भी। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया है, कैसे करेंगे, कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट है। ये पीएम असेंबली टिक करना है तो कैसे टिक करेंगे, कुछ मटेरियल ले लें तो पीएम असेंबली का येलो कलर में आ जाएगा, बाकी रेड कलर में रहेगा। दिस इज सिंपल पीएम, दिस इज अ मास्टर डेटा, एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में अपने को ये बनाना पड़ता है। ये सब डेटा एक्सेल फाइल में अपने को यूजर से मिलता है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट,
डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना है, पर बनाना कैसा ये पता होना चाहिए। एंड दे इफ दे टोल्ड दिस मटेरियल इज मेंटेन असेंबली इन और एरिया, तो अपने को अवेयरनेस चाहिए कि असेंबली उसको कैसे बनाए। करेक्ट है? Yes, ये sir. सिंपल मास्टर डेटा है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट मास्टर डेटा, पर इसका एप्लीकेशन Yes, बहुत sir. बढ़िया है। पर एज अ कंसल्टेंट, ये कंसल्टेंट का काम रहता है बनाना। इफ यू गाइज एनी डाउट इन इट, यू कैन आस्क विनीत, अरिंदम। मटेरियल का भी बीएम रहता है, मटेरियल बीएम भी सिंपल रहेगा। देखो, मटेरियल बीएम मतलब वो कुछ इतना R&D नहीं करते हैं मेम मॉड्यूल में। वो क्या करेंगे, जैसे टी कोड क्या हो गया उसका, CS01 हो गया, तो वी आर प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट एज ए इनपुट, फंक्शन लोकेशन एज ए इनपुट, तो वो क्या करेंगे, मटेरियल एज ए इनपुट प्रोवाइड करेंगे। देखो, मटेरियल डालेंगे, सेम ही चीज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल है, तो मटेरियल का जो सब मटेरियल होगा जैसे असेंबली की तरह ही हो गया, तो सेम चीज वो भरेंगे। पर मटेरियल बीओएम का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उनके मॉड्यूल में, सो दे आर मेकिंग। सो ये आप इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव जस्ट उनका एक की कोड ध्यान में रख लो, कोई पूछेगा गलती से तो, अदरवाइज दे आर आस्किंग यू टू दिस टू थिंग्स। असेंबली कैसे बनाते हैं ये क्वेश्चन हो जाएगा। टी कोड कभी कभी लोग भूल जाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो टी कोड का डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो फिर अपन सेम ही बोल देंगे। तो टेक जब भी किसी ने गलती से बोला था कि इक्विपमेंट बनाते हुए भी सेम एंड फंक्शन लोकेशन बनाते हुए भी सेम, हाँ हाँ ऐसा नहीं करना है। नहीं बोला एक दो तीन ही क्वेश्चन आएंगे इसमें, ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट मतलब ज्यादा कुछ नहीं आएगा, खाली बनाते आना चाहिए एज कंसेप्ट। करेक्ट है? और कुछ क्वेश्चन? yes sir. Okay, sir. आप, और टाइम बचा है, आई थिंक वी हैव एक 5-10 मिनट बचा है, तो ठीक है। आप किसी को सिग्नेचर थीम चाहिए था ना, तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन, आई विल गाइड यू। Okay, हाँ sir. Okay sir, the बताओ, topic देखो is इमीडिएटली complete now. क्लास Shall में। I leave sir? यस यस, यू कैन लीव, नो इशू। Sir, please upload the PPT as well as the यस, structures also. टेंशन मत लो, ये How डिले you have? होगा। सी सी सी, आई एम इन Okay, okay. डिफरेंट सिटी लास्ट वीक, वो तो फिर नेट मेरे पास बहुत डेटा चला जाता था, तो अभी मेरे पास वाईफाई है, डोंट वरी, विल अपलोड एवरीथिंग। ओके, Okay sir, no issue. Yes, sir, like, Thank you sir. yes, sir, one more doubt, sir. हाँ Sir, यस विनीत। this is my screen. Yes, sir, like, work center class, sir. No, no, work center, that day, see Vinith, I started a work center class, but there is so much network issue, so student not able to understand easily, so in 15 minutes we drop that. We'll take that topic again in from fresh, don't worry. Okay, sir, okay. Okay, we'll drop that. Thank you, sir. Vinith, you are not, you should not open your camera, just share your screen. Okay, sir. No, 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 I have not seen my screen. No, Vinith, no, not Vasu, I'm talking about Vasu. No, sir. Yes sir, yes. Yes, तो आप भी देख लो, किसी को देखना हो तो कैसे करते हैं सिग्नेचर थीम, बता दो। अभी Yes मैंने sir. भी बहुत दिनों बात कर रहा हूँ, पर विल चेक कैसे करते हैं। वासु कर रहे हो आप स्क्रीन शेयर? मैं मेरा स्टॉप करता है 1 मिनट, Sir, आपको करने नहीं दे रहा होगा, आपको अलो नहीं कर रहा होगा, जस्ट यू मैं से कैन आई विल स्टॉप स्क्रीन शेयर, स्टॉप शेयरिंग। हाँ अभी करो आपका स्क्रीन शेयर, सॉरी फॉर। सर नहीं हो पा रहा सर, नेटवर्क इशू का। मतलब आपको पता है ना शेयर कैसे करते हैं, खाली नेटवर्क इश्यू आ रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा है क्या? यस, यू कैन शो फ्रॉम वीडियो, देन वीडियो से शो करो, मैं देखता हूँ। चलो मैं बोलता हूँ उसमें जाओ। मैं ऑन करूँ सर? हाँ ऑन कर दो, हाँ मोबाइल का कर लो। करो एक बार फटाफट, 5 मिनट कर लेंगे। नॉट विजिबल। हेलो, आप एक काम करो, मोबाइल से ज्वाइन कर लो और कंप्यूटर का स्क्रीन दिखा दो, 2 मिनट हो जाएगा।
Sir, we can leave, sir? Yes, you can leave in it if you. Okay, sir. Okay. वैसे आपका नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है, दिख ही नहीं रहा है कुछ screen में। बहुत इशू है सर, नेटवर्क इशू है। ठीक है भाई, एक काम करेंगे, देखो चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरा स्क्रीन देखो, मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, आप फोटो ओके निकाल लिया सर। करो मोबाइल पे, मैं जो बताता हूँ, मेरे को भी देखना पड़ेगा वो किधर है, बट स्टिल विल ट्राइंग। ओके, देखो ये इनिशियल स्क्रीन पे आना ओके है, सर। इसमें सिस्टम में जाना है। ओके, सिस्टम में अपने को जाना है, हाँ ठीक है, सिस्टम मैंने हेल्प में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, अरे यार मैं भूल गया अभी तो। ठीक है, एक काम करेंगे, तो वन टाइम एक्टिविटी है, बाद में बार बार करने का जरूरत नहीं रहता, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर। कर लो, तो टाइमिंग देखने का, एक मिनट। ऑप्शन करके आना चाहिए, आपके इधर ऊपर में ऑप्शन कर किधर दिख रहा है क्या, एक ऐसा विंडो ऑप्शन करके कुछ, जैसे एडिट फेवरेट एक्स्ट्रा सिस्टम ऑप्शन करके कुछ दिख रहा है क्या? नो सर। अच्छा देखो, चलो ठीक है, इसमें होगा, ठीक है मिल गया। ये ऐसा स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको, ऐसा टीवी का सिंबल? नहीं दिख रहा सर, उसमें नहीं इसलिए है। तो आपके दिखेगा नहीं, तो ये ऑप्शंस करके ढूंढो इधर, जो टास्क बार में है ना, इधर किसी में ऑप्शंस करके कुछ दिख रहा है क्या? इसलिए मैं ढूंढ रहा था आपके जैसा हो जाए, ये इधर तो आ ही जाता है। तो इसमें ऐसा एक एक स्क्रॉल करो, ऐसा किधर ऑप्शंस करके दिख रहा है क्या, तो ओके बताना। सर। देखो पैरेलली,
तो इसमें जस्ट ऑप्शन में जाना है, मिला तो बोलो मेरे को। जैसे सिस्टम एक्स्ट्राज और इसमें होगा ऑप्शन करके, ये देख लो ऑप्शन में जाना है, उसमें थीम सेटिंग में जाना है और ओके सर। सिग्नेचर थीम सिलेक्ट करके अप्लाई करके ओके करना है। तो जैसे अप्लाई करके ओके करोगे कुछ भी नहीं होगा, तो उसको पूरा कट करना है, पूरा एप्लीकेशन के बाहर आना है और वापस रीलॉग इन करना है, तो ये स्क्रीन दिख जाएगा। लिख लो ओके लगे सर। तो ऑप्शन थीम सेटिंग और सिग्नेचर थीम अप्लाई एंड सेव, बस इतना ही करना है। टीवी का ओके आपको इधर सर। नहीं आएगा इसलिए मैं ढूंढ रहा, ये देखो ऊपर ही मिल जाएगा कि इधर ऑप्शन करके ऐसा देख लो, देखो ऑप्शन करके लिख के आएगा, बस इतना ही ढूंढना है आपको, अदरवाइज नहीं मिला तो एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं कर दूंगा। ओके ओके सर। ओके, ओके सर। देन वी गुड टू क्लोज।